Good evening, sir. Good evening. और आपका माइक म्यूट है। हाँ बताओ, लास्ट प्लांट इशू में कहाँ तक कराए थे? परेनकाइमा करा दिए थे ना? परेनकाइमा करा दिए थे, हमको याद है। कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा, यही ना? चलो लिखोगे कोलेनकाइमा। बोलो सर हम लोग 10th का है अभी बैच। अभी 10th का बैच है? Yes, टेंथ sir. है। ओहो, हम देखे नहीं टाइमिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। Yes, sir. सर इसमें भी है सर थोड़ा सा रेस्पिरेशन। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अरे हम टाइमिंग देखे नहीं, हमको लगा कि अभी एक रुक जाओ। अच्छा, तो रेस्पिरेशन पढ़ाए थे ना? यस सर Yes, sir. रेस्पिरेशन। Plant प्लांट respiration. रेस्पिरेशन स्टोमाटा का मैकेनिज्म करवा दिए थे ना? बस लिखाना बाकी यस था। सर। चलो ठीक। अच्छा, एक सेकंड। लिखाना ना, लीव्स एंड यंग स्टेम। चलो टॉपिक लिखोगे, लीव्स एंड यंग स्टेम। यंग स्टेम in this region, a structure which is present for exchange of gases called stomata. The epidermis layer of leaf
leaf bears a number of aerating pores called stomata. Each stomatal pore is guarded by a pair of guard cells. Guard cell is being an kidney shaped with inner wall being thicker and less elastic than the outer wall. Guard cell regulate opening and closing of stomata. Guard cells have mechanism to increase their osmotic concentration by withdrawing K+ ions from surrounding epidermal cell. High सर सेकंड पॉइंट में लीफ के बाद क्या लिखा हुआ है? leaf bears a number of aeration pores called stomata. Okay. सर बोलो सर वो फोर्थ पॉइंट में किडनी शेप्ड विद इनर के बाद क्या लिखा हुआ है? kidney shaped with inner walls being thicker and less elastic than the outer wall. High osmotic concentration help guard cell to withdraw. Water from surrounding तो थर्ड पॉइंट में स्टोमेटोपोर के बाद क्या है? is bordered by a pair of guard cells. Surrounding
cells and become the seed. Cells and become the seed. So note करो इसको. हो जाएगा तो बोलना, ठीक है. हो गया सर। सबका हो गया? नो सर। हाँ ठीक है, लिख लो लिख लो. सर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिए थे? नहीं नहीं, इसके बाद पढ़ाएंगे. अभी तो प्लांट का ये लास्ट था, लिखवाना था, इसलिए लिखवा रहे हैं भाई. ये लास्ट है. सर सेकेंड लास्ट में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन Osmotic concentration by withdrawing K plus ion from surrounding epidermal cells. सर विड्रॉइंग के बाद क्या बोले आप? Withdrawing K plus ion from surrounding, ये ना, K plus ion from surrounding epidermal cells. सर हो गया। हो गया? चलो. यस सर।
The turgid guard cell swell up as the outer wall is thin, as the outer wall is thin, and elastic guard cell and elastic guard cell bend towards bend outwardly more than the inner region where wall is thick. However, some bending also occurs here. As the inner wall of सर वो as सेकंड the पॉइंट में क्या लिखा हुआ है सर? थिन एंड इलास्टिक। कौन सा? सर वो सेकंड लाइन। As the outer wall is thin and elastic, guard cell bend outwardly more than the inner region where wall is thick. However, some bending also occur here. ठीक है? As the inner wall of the two guard cells bend outwardly a pore is created between them. During closure of stomata, the guard cell sent out K plus ions. Water also pass out as the turbidity decrease. Guard cell contract. Their thicker inner wall come to touch each other, the pore gets loose. The
pore get closed. And stomata open, gas diffuse into and out of the leaves. चलो ये खत्म हो गया. As per their साथ लिखते हैं, as per their concentration. बस ना लिखो, काफी है. हो जाएगा तो बताना, ठीक. सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना. सबसे लास्ट. यस सर. When the stomata open, gases diffuse into and of the leaf as per their concentration. हो गया सर. हो गया कंप्लीट. बताएं. सर हो गया. यस सर. कोई बोला था नहीं हुआ है. बताओ, हो गया ना सबका. मिटाएं. यस सर. चलो ठीक. ये हो गया हमारा किसका, प्लांट का पूरा. ठीक है. देखो नाइट में क्या बताए थे. नाइट में अगर स्टोमाटा क्लोज रहता है तो गैस ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए रात के दिन में बताए थे ना कि बड़े पेड़ के आसपास नहीं रहना चाहिए. सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है. क्यों प्रॉब्लम होता है. सफोकेशन का केस आता है. क्यों आता है. क्योंकि आसपास का सारा ऑक्सीजन जो होता है क्लोज होने पे सारा चीज जो होता है वो सारा ऑक्सीजन जो होता है खुद कंज्यूम करने लगता है प्लांट. ठीक है. ये चीज है. अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में वो है एनिमल रेस्पिरेशन. ठीक है. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एनिमल में सिर्फ हम लोग तो है नहीं, बहुत कोई है. तो कुछ एग्जाम्पल है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई मीन एक तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो अलग अलग इंडिविजुअल में या फिर स्पीसीज में प्रेजेंट होता है. ठीक है. जैसे एक रेस्पिरेशन जो है वो जैसे हाइड्रा है, पॉरीफेरा है, हाइड्रा है, ये सब जो होता है मल्टीसेलुलर एनिमल होता है. ये डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस, आई मीन डिफ्यूजन के थ्रू ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है ये. ठीक है ना. देखो हम लोग को देखना है एक दो तरह का रेस्पिरेशन होता है.
एक होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन और एक होता है गिल रेस्पिरेशन, जिसको ब्रोंकियल बोलते हैं। चलो गिल से रेस्पिरेशन कौन करेगा? तो जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, मोस्टली फिश की बात कर रहे हैं, तो जो फिश है वो क्या करेंगे? वो गिल रेस्पिरेशन करेगा। मतलब कि सब में अलग अलग, जैसे फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग में तीन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जैसे अगर वो पानी में रहा तो गिल्स, अगर वो टेरेस्ट्रियल पार्ट में रखा, जमीन में रहा, तो वो लंग्स, और अगर वो सॉइल के नीचे चला गया तो उसका स्किन। तो बहुत ऐसा ऑर्गन स्पीसीज है जिसका स्किन ही एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैस वहां पे होता है। इस तरह से ट्रैकिया वगैरह भी, इंसेक्ट्स का ट्रैकिया होता है। तो हर एक मतलब स्पीसीज का या हर एक एनिमल का बोल सकते हो अलग, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, क्योंकि इंसेक्ट्स को भी एनिमल में रखा है। तुम लोग 9 पास करके आए हो तो एनिमल किंगडम में हर एक चीज को रखा है, तो जो भी एग्जाम्पल बोले सब एनिमल का है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे जो गिल का रेस्पिरेशन होता है, गिल रेस्पिरेशन मोस्टली जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को फिश के बारे में पढ़ना। एक्चुअली में गिल क्या है? तो गिल जो है बहुत ही डेंस चैम्बर होता है। मतलब तो गिल्स तुम कैसे देखोगे? देखो, जैसे गिल्स देखने का बहुत अच्छा तरीका ये इस तरह से कॉर्ड में प्रेजेंट था स्टॉक में। कभी मछली मार्केट जाओगे ना तो बोलेगा कि ताजा है। कैसे पता चलता है ताजा है? तो देखना कि इस रीजन में एक कवर होता है, उसको निकाल के दिखता है वो रेड रेड देखिए, बोलता है ना कि रेड रेड देखिए वो सही एकदम। तो एक्चुअली में वो क्या है? वही है गिल्स। गिल्स के अंदर में कैसे रहता है बता देते। देखो ये गिल्स है, ये गिल्स है, तो इसके ऊपर में इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन अंदर में इस तरह का लेयर है। किस चीज का लेयर? लेयर नहीं बोल सकते, इस तरह का ट्यूब है। जैसे हम लोग में ब्लड कैपिलरीज है, उसमें इस तरह का ट्यूब है जिसको नाम लिया गया है, जिसका नाम है लैमिला। क्या लिया गया है? लैमिला। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले फिश जो है, क्योंकि देखो फिश है तो वो पानी में रहेगा और पानी से ही ऑक्सीजन को लेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो ऑक्सीजन है वो कहाँ किस में डिजोल्व है? पानी में डिजोल्व है। किसमें? पानी में डिजोल्व है। अब वो ऑक्सीजन लेने के लिए उसको पानी ही पीना पड़ेगा, तो मुंह से पानी लेगा अंदर, और साइड से जो हम अभी बताए कि कभी जाओगे फिश वगैरह को कभी मार्केट, तो देख यहाँ पे कवर होता है, उसको उठा के देखता है, वहाँ रेड रेड दिखता है हम लोग को, ठीक है, जाली टाइप से। तो जो नेटवर्क टाइप से, जाली टाइप से वहाँ रेड है, वो गिल्स है। और माउथ के थ्रू, गिल्स के थ्रू, और जो गिल्स का जो कवर होता है उसको हम लोग ऑपरकुलम बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ऑपरकुलम से ये गिल्स जो है ढका रहता है, तो पानी मुंह से लेगा, गिल्स में एक्सचेंज करेगा, और ऑपरकुलम से जो है वो बाहर भेजेगा। जो पानी बाहर भेजता है उसमें CO2 ज्यादा होगा, क्योंकि मुंह से पानी लिया तो ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा गया, और गिल्स के पास जाने के बाद वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। CO2 चला गया अंदर, गिल्स के थ्रू चल गया बॉडी में, और CO2 चला गया गिल्स के थ्रू किसमें? पानी में, और वो पानी निकल जाता है। यही मैकेनिज्म है छोटा सा, जिसको हम लोग गिल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मोस्टली अगर कभी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का बात करें और उसमें अगर पूछे कि गिल्स का रेस्पिरेशन होता है, तो वो फिश के बारे में बात करता है। इतना ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो मैकेनिज्म हम लिखवा देंगे, तुम लोग समझ गए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है एनिमल रेस्पिरेशन। हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ पे कि एनिमल रेस्पिरेशन में क्या क्या मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले एनिमल में, आई मीन ह्यूमन बीइंग में अगर रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन जो ऑर्गन है वो क्या है? वो लंग्स है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो लंग्स, ठीक है। देखो, अगर कोई हमको ये बताओ, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर वे में बॉडी में नहीं मिला तो क्या होगा? प्रॉपर वे में अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो बॉडी में क्या होगा, ये हमको बताओ। कोई आंसर करो जल्दी से, सोच के करना थोड़ा, क्योंकि ये हम पहले ही बता चुके हैं। सर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। क्या? सर बोल रहे सर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा? क्या पता सर। उससे क्या होगा? अगर छूट गया तो उससे क्या होगा? और ऑक्सीजन के घटने से क्या होगा? बोलो।
बॉडी रेस्पिरेशन ऑर्गन नहीं वर्क होगा। नहीं कर पाएगा। क्या? और अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा। हाँ, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो वही पूछे क्या होता है, अगर मान लो रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो होगा क्या, वही पूछ रहे थे, बताओ। एनर्जी मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलेगा, सर ये ब्रेक चीज डाउन बोलो ऑफ ना। फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं देगा। एनर्जी नहीं मिलेगा, गुड। देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई भी अगर मान लिया जाए एनिमल है, उसके सर्वाइव के लिए उसको चाहिए क्या, चाहिए वो, ये बताओ, उसको चाहिए ऑक्सीजन, सॉरी उसको चाहिए एनर्जी। और एनर्जी में एनर्जी अगर हम लोग को लेना है, एनर्जी के लिए हम लोग को देना पड़ेगा ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज कहीं ना कहीं स्टोर्ड फॉर्म में भी रहता है और हम लोग उसको इनटेक करते हैं, खाना खा के हम लोग फील करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज है बॉडी में और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, ब्रेक नहीं कर पाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो बॉडी वर्क नहीं करेगा। देखो अभी तुम लोग के साथ एग्जांपल बताते हैं क्यों इतना ज्यादा ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। अभी का जो टाइम पीरियड क्या है, पेंडेमिक है, कोविड है। क्यों आदमी कोविड मरता है या क्यों मर रहा है, ठीक, उसका रीजन है। देखो कोविड को कॉज करने वाला जो पैथोजन है वो वायरस है। तो ये वायरस क्या करता है कि हमारे लंग्स को इतना ज्यादा इफेक्ट कर देता है, ठीक है, प्रॉपर वे में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा। और अगर प्रॉपर वे में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया तो बॉडी का सबसे पहला जो है वो ब्रेन डैमेज करता है। ब्रेन, क्योंकि ब्रेन भी तो एक ऑर्गन है, बॉडी का पार्ट, अब एनर्जी चाहिए और उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ग्लूकोज कितना भी भेज दें ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं और वो ब्रेक डाउन हो नहीं पाएगा। तो ब्रेन डैमेज होना सबसे पहला ब्रेन डैमेज ही होता है तो आदमी मर जाता है, ठीक है। इसलिए बोलता है ऑक्सीजन लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए कोविड के केस में, इसलिए बोलता है ऑक्सीमीटर से चेक करते रहना चाहिए। किसी भी पर्सन का अगर 95 से नीचे है तो उसको ऑक्सीजन का सीरियस प्रॉब्लम है, हो सकता है। देखो 90 किसी का अगर O2 कंसंट्रेशन 90 तक देखा गया है, क्योंकि 95 से प्लस को नॉर्मल माना गया, 95 से अगर कम है तो बोला जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, और 90 से अगर नीचे आ गया तो वहां दिक्कत हो, ठीक है। इसीलिए एक प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और उस ऑक्सीजन को फुलफिल कौन करेगा, हमारे बॉडी का सिस्टम जो बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वो क्या है, लंग्स। इसलिए बता लंग्स अगर इफेक्ट किया तो सबसे पहले ब्रेन डेड होगा, ब्रेन डैमेज होगा, देन फिर हार्ट, देन फिर किडनी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। देखो हम लोग ये समझ गए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो ऑर्गन क्या क्या है, ऑर्गन भी होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन पढ़ते हैं कि इसके अंडर में कौन कौन, जैसे हम लोग डाइजेशन में पढ़े थे ना, माउथ है, टीथ है, टंग है, ये सब पढ़े थे। तो इसमें भी हम लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है नोज। क्या होता है, नोज, ठीक है। देखो नोज जो है वो उसमें ओपनिंग है, होल है, पोर बोल सकते हैं उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल पोर। क्या बोलेंगे, नेजल, सॉरी ओपनिंग, पोर नहीं, ओपनिंग होगा, और इसको नेरेंस बोला जाता है। इसको वर्ड क्या लिया, नेरेंस। नेजल पोर या नेरेंस से जो ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, अंदर। ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे, इनटेक करेंगे, इनहेल करेंगे, इनटेक नहीं, इनहेल करेंगे, इनहेल कर लिए। अब इनहेल करने के बाद नोज के थ्रू, एक्चुअली देखो एक और चीज ध्यान में देना, नोज के अंदर में क्या है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी है। क्या है, नेजल कैविटी। और इस नेजल कैविटी में दो चीज है, एक है हमारा हेयर और एक होता है एपिथेलियल टिश्यू का लेयर। एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियम लिख देते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। हेयर है तो ये फिल्टर करेगा, क्या फिल्टर करेगा, डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब्स, ये काम करेगा, ठीक है। और एपिथेलियम है तो ये दो करेगा, एक तो सिक्रीट करेगा म्यूकस सिक्रीट करेगा, ठीक है, और दूसरा इट
कीप मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन। अगर हम बात करें कि वो म्यूकस सिक्रीट करेगा, मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन रखेगा, तो मॉइस्ट अगर सिक्रीशन सॉरी म्यूकस का सिक्रीशन होता है, क्योंकि देखो एपिथेलियल टिश्यू तो कोई ना कोई चीज सिक्रेट करेगा ही करेगा। बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू है, सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो इसका जो काम है यहाँ पे क्या करेगा, म्यूकस का सिक्रीशन। और म्यूकस के सिक्रीशन से क्या फायदा है, तो जितना भी माइक्रोब्स है, माइक्रोब जो होता है उसका दो चीज हो जाएगा, या तो वो किल हो जाएगा और या तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और तीसरा क्या बोल सकते हैं कि वो हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करके अंदर जाने देगा। जैसे देखो समझना, गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्म हवा चलता है, ठीक। गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलता है तो गर्म हवा ही हम लोग अंदर लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही नेजल कैविटी में जाएगा, वो जो एयर है वो ठंडा हो जाएगा और दूसरा उसमें जो भी माइक्रोब्स वगैरह है वो मर जाता है ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। तो ये नेजल कैविटी का बात है। उसके बाद जस्ट नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स क्या है, तो इट इज एक तरह का जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन जंक्शंस ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ये जंक्शन है, ये फेरिंग्स है। फेरिंग के जस्ट नीचे होता है लैरिंग। क्या होता है, लैरिंग। तो लैरिंग्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। अगर लैरिंग्स नहीं होगा तो हम लोग बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। अब वॉइस बॉक्स क्या होता है, इसमें इस तरह का कॉर्ड होता है। क्या होता है, कॉर्ड होता है। देखो ये इस तरह का कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो इसके बीच में जो है कैविटी, अगर इसके बीच में जैसे एयर जाता है ना, तो दोनों कॉर्ड वाइब्रेट करता है और वही साउंड के फॉर्म में क्या होता है हम लोग को सुनाई देता है, मतलब वही से साउंड जनरेट हो गया। समझ में आ गया होगा। तो ये फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है। एक और चीज ध्यान रखना कि फेरिंग्स का क्या काम है, ये तो एक तरह का जंक्शन हो गया। तो इसका काम होता है चेक एंट्री ऑफ फूड एंड एयर, चेक एंट्री ऑफ फूड एंड एयर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान समझना। कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कोई अगर आदमी स्वलो करता है, खाना को निगलता है, तो निगलना और सांस लेना एक साथ नहीं हो सकता। मतलब स्वलोइंग और इनहेलेशन प्रोसेस एक साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता समझना। देखो जैसे मान लो ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है, इसको हम लोग बोल दिए फूड पाइप, इसको बोल दिया विंड पाइप। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ओइसोफेगस। क्या हो जाएगा, ओइसोफेगस। और ये क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। क्या हो जाएगा, ट्रैकिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये फूड पाइप है और इधर से कोई खाना जा रहा है, और खाना अगर एयर वाले में चला गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करता है, यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही फूड आता है ना, ये फूड के प्रेशर से ये बंद हो जाता है और फूड अपने सही पाइप में या ट्यूब में चला जाता है। लेकिन अगर एयर वाले में चला गया ना, तो वो लंग्स में अगर चला गया तो वो कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए बोलता है कभी भी हड़बड़ी में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है निगलने के टाइम पे प्रॉपर वे में नहीं निगल पाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि निगल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे चला गया खाना ना, तो वैक्यूम इस तरह क्रिएट होता है और हम खाना क्या था बाहर फेंकते हैं, और वही क्या बोलता है, सरक गया। बोलता है ना कि अरे सरक गया पानी पिलाओ, सरका है। क्योंकि सरका है क्योंकि ये फूड का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा या तो इस पाइप में आके कॉर्नर पे सट जाता है, या फिर वो फूड थोड़ा सा चला गया ट्रैकिया में, तो अंदर ना जाकर उसको बाहर मतलब किया जाता है। मतलब हम बॉडी का मैकेनिज्म ही है। तो ये जो वही बाहर जो करते हैं, तो खाना क्या होता है, खाना सॉरी हम लोग क्या होता है, सरक जाता है। वही बोलता है सरक जाता है, पानी पियो, या हम लोग ऊपर से ठोकते हैं क्यों, या फिर हम लोग पीठ चलाते हैं। क्यों चलाते हैं, क्योंकि वो फूड जो है वो प्रॉपर वे में चला जाए। अगर वहां पे सपोज दैट मान लो यहाँ आके फंस भी गया ना, तो भी हिचकी उसी को वही आता है, हिचकी हमेशा बार बार। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये है तुम्हारा मैकेनिज्म। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि फेरिंग का जो है उसका क्या काम है, तो चेक एंट्री ऑफ फूड एंड विंड, मतलब वो चेक करके भेजता है कि कहाँ फूड जाना है, कहाँ एयर जाना है। तो क्वेश्चन भी बता दिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि स्वलोइंग और इनहेलेशन एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही स्वलो करते हैं तो
इसको बोला गया, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला गया एपिग्लॉटिस। क्या बोला गया? एपिग्लॉटिस। और यही एपिग्लॉटिस से फूड टकराएगा और ये इसको बंद कर देगा, पहले बंद नहीं रहता है, फूड जब टकराएगा तब। ठीक है, तो यही होता है। और उसके बाद फूड पाइप में चला जाता है खाना, और जब स्वलोइंग नहीं करते हैं तो ये ओपन रहता है, ऊपर रहता है, ये क्लोज करके नहीं रखता है वो पाइप को, तो हम लोग आराम से सांस ले सकते हैं। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म होता है लैरिंक्स वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये समझ गया। ट्रैकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया ही आता है। चलो इसको नोट कर लो। देखो हम तुमको बताते हैं एक और चीज, इसमें बहुत कुछ तुमको नोट नहीं कराएंगे तो नोट्स लेंदी हो जाएगा, समझाने के लिए हम तुमको बता दिए। एनसीईआरटी में जो प्रॉपर वे में टॉपिक है वो हम तुमको बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा हम लिख पाएंगे, बट इसको लिख लो, यहाँ इतना पढ़ोगे काफी है। ठीक है, चलो नोट करो फटाक से। सर फायरिंग्स के इसका क्या लिखा है? फंक्शन ऑफ फूड पाइप। फंक्शन कहाँ पे? फंक्शन ऑफ ये वाला, अच्छा ये जंक्शन ऑफ फूड No, पाइप sir. एंड विंड पाइप है। जंक्शन है, फंक्शन नहीं, जंक्शन। सर एक और पूरा रिपीट कीजिए ना। ऊपर से नो सर, वही ये जंक्शन देखो, ऑफ फूड पाइप। फेरिंग्स में लिखा हुआ है जंक्शन ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप को इसोफेगस, विंड पाइप को ट्रैकिया। और नीचे में लिखा हुआ है चेक एंट्री ऑफ फूड एंड एयर। चेक एंट्री, चेक करके एंट्री करना है ना, किसका? फूड एंड एयर, फूड और एयर का, बस ये लिखा। चलो सबको नोट करो, रिप्लाई करना हो जाएगा। तो आगे फिर हम नेजल ओपनिंग नेरेंस एन, अच्छा एक सेकंड, एन एन ए आर ई एन एस नेरेंस। ठीक है, सर में क्या लिखा हुआ है? लैरिंग्स में लिखा है ये लैरिंग्स, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। देखो वॉइस लोगों में लैरिंग्स जो होता है ना वो निकल जाता है, जिसको एडम सेपल बोलते हैं, यहाँ पे जिसको बोलते हैं कंठ निकल गया है वो वॉइस बॉक्स है। ठीक है, वो एडम सेपल निकल जाता है एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, को ध्यान रखना। ठीक है, चलो बनाओ फिर। सर सिक्रीट म्यूकस के नीचे क्या लिखा हुआ है? सिक्रेट म्यूकस के नीचे कीप मॉइस्ट कंडीशन, एरो देखे ना, कीप मॉइस्ट कंडीशन। सर वो विंड पाइप को सर कंट्रोल कौन करता है सर? क्या लिखा है सर? क्या विंड पाइप को क्या? सर वो विंड पाइप का सर कंट्रोल कब करता है? जब सॉलो करते हैं तो सर। नहीं सुनाई दे रहा जी, तुम्हारा आवाज नहीं समझ में आ रहा है, सर क्या जब बोल हम रहे लोग फूड सॉलो करते हैं तो सर विंड पाइप को कोई ब्लॉक करता है ना सर? हो? ये इपिग्लॉटिस है, बोले तो इपिग्लॉटिस है, लिखे तो है यहाँ पे। वो समझ में नहीं आ रहा था सर। देखो एक्चुअली इपिग्लॉटिस वहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। इपिग्लॉटिस क्या है? स्ट्रक्चर है जो फेरिंग से ही कनेक्ट होता है, वो समझ में है। फेरिंग से कनेक्ट, वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से मैकेनिज्म करता है। तो जब फूड को स्वलो करते हैं तो वो फूड यहाँ किनारे पे लगेगा और सीधा ट्यूब वो वाला पार्ट को वो ब्लॉक कर देगा, तो खाना उसमें नहीं जाएगा, खाना वैसे सेकंड में चल जाएगा, बस वही चीज है। और जब, हाँ बस यही है।
हो जाएगा तो बताना। क्या बने अभी तक? हो गया सर। हो गया ना? चलो एक सेकंड। चलो यहाँ तक समझ गए हो तो पहले थोड़ा हम लोग गिल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म लिख लेते हैं, ठीक है ना? चल आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पता चला आगे सब समझ लिए फिर लिखना पड़ा है क्लास को। लिख लेते हैं पहले गिल रेस्पिरेशन को। टॉपिक लिखोगे गिल रेस्पिरेशन, इसको ब्रैंकियल भी बोलते हैं, ब्रैंकियल और in fish water enters through mouth which is pharynx and then gill chamber। देखो गिल चैम्बर मतलब जहाँ पे गिल प्रेजेंट होता है उसी को गिल चैम्बर बोलते हैं, ठीक है? Here it is filtered in रैकर्स। देखो रैकर्स का मतलब यहाँ पे समझना है, जैसे गिल है ना तो ये एक साथ 3-4 रहता है तो उसी को रैकर्स बोलते हैं, ठीक है? रैकर्स एंड passed through gill lamella, gill lamella where exchange of gases occur oxygen from water enters blood while CO2 of blood diffuses out in water। Water carrying CO2 passes out of gill slits। तो सेकंड पॉइंट में फिल्टर्ड के बाद क्या लिखा हुआ है? फिल्टर्ड कहाँ चला गया? फिल्टर्ड इन रैकर्स, RAKERS रैकर्स डायरेक्टली और थ्रू। बोलो क्या बोल रहे थे? poured in operculum। चलो नोट करो इसको फट से। हो जाएगा तो
सर लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? सर आपको माइक म्यूट है। ओपरकुलम, OPR, एक सेकंड रुको, फिर से लिख देते हैं ओपरकुलम। हो गया सर। सबका हो गया? सर लास्ट पॉइंट में क्या लिखा लास्ट हुआ है? लास्ट लाइन में क्या, एक सेकंड रुको, हम फिर से पढ़ देते हैं। ये वाला, वाटर कैरिंग CO2 passes out of gas slit directly or through the pore in operculum। हो गया यस सर। कंप्लीट सबका? यस। चलो, यस सर। हाँ, यहाँ तक समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग का टाइम चेंज हो गया क्या? 5 से हो गया है क्या? हाँ सर 5 से 6 हो गया। हैं? हाँ सर 5 से 6 हो गया। हाँ सर 5 से हाँ, 6। एक्चुअली हम रूटीन तो हमको पता था ना कि 5 से, तो हम 9 का समझ लिया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ठीक है, पढ़ के आना तुम लोग, देख लेना फीस Yes. वाला है, ठीक। ओके, बाय सर। बाय बाय।